Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I'm Rashmita and I'm back with another lecture. And in this lecture, we are going to talk about Anglo-Maratha Wars. We have already discussed in our previous videos that how was English able to conquer the part of Bengal and the part of Mysore. And in this video, we are going to talk about कि कैसे उन्होंने मराठा एम्पायर को सबसाइड करके उसके ऊपर अपना राज जमाया था. And we will also talk about all of the Anglo-Maratha wars that happened and what was the cause of the war and who were the major leaders of that war and what was the background of that war and also the significance of these wars. So before getting started with our lesson, there are three mega batches for complete preparation which are going to start from 15th of June on Unacademy for UPSC CSE. So these are the three batches. First is Mission UPSC CSE 2021, Lakshya UPSC CSE 2021, and Expedition UPSC CSE 2021. So the first one is bilingual GS batch course, second is Hindi GS batch course, and the third one is English GS batch course. So, what all you will be getting in these courses is full syllabus coverage, prelims and mains test series with analysis, dedicated doubt clearing sessions, and also the interview preparations. You can use our code SIMPLEYT in order to get an extra 10% discount on the total amount that you are going to be paying for these courses, for joining these courses. Also, there is an all India free mock test for UPSC CSE prelims which is on 21st of June. So you can enroll it for free if you want to sit for this exam. So with this, let us get started with our lesson. So जो एंग्लो मराठा वॉर्स थी उनके ऊपर आने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मराठा एम्पायर एट दैट टाइम एंड हाउ डिड द इंग्लिश स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन द मराठा पॉलिटिकल matters. So as you all know, when the Mughal empire was actually declining, there were no major powers except the Maratha empire. So at that time Maratha empire जो था वो बहुत ज़्यादा rise कर रहा था because it had really great leaders at that time. So basically मराठास ने क्या किया, उन्होंने मुगल डिक्लाइन का फ़ायदा उठा के they started coming up towards the north. Okay, so there was an area in Lahore which they captured and they actually aspired to conquer all of the north area. They also became the kingmakers in the Mughal court basically. तो क्या होता, by the middle of the 18th century they were in Lahore. Okay, since they had a lot of power, because as I have already discussed in my previous videos that जो Marathas they used to collect different kinds of taxes like chauth, okay, from different regions. So they were becoming really powerful and they had like immense powerful leaders जो wars को जीत के ही आते थे. There was no doubt कि वो war हार के आएंगे. So by the middle of the 18th century they went towards Lahore. They become the kingmakers, but they got defeated in third battle of Panipat. तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें दे गॉट डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली एंड सम ऑफ द इंडियन लीडर्स जो बाद में अहमद शाह अब्दाली के साथ जाके मिल गए थे. ठीक है, बट even after that defeat they actually regrouped and within a decade achieved a position of power in India. So even after they were defeated in the third battle of Panipat they actually regrouped themselves. ठीक है, वो दोबारा से इकट्ठा हुए एंड दोबारा से उन्होंने पावर इस्टेब्लिश करने का सोचा. So, if we talk about the Maratha Empire, Bajirao I is considered the greatest Peshwa. So, the concept of Peshwa was that जो Peshwa होते थे, he was kind of a prime minister of the Maratha Empire. So there was a king at that time when Bajirao was there, Sahu. Okay, so Bajirao I was the second पेशवा फ्रॉम द भट्ट फैमिली. तो इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ. ओके, तो ही वॉज द फर्स्ट हेरिडेटरी पेशवा. तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले पेशवास चुने जाते थे अलग अलग पावरफुल फैमिली से. ओके, तो उस टाइम जो पेशवास चुने जाते थे दे वर नॉट हेरिडेटरी रूलर्स, दे वर एक्चुअली के उनको चुना जाता था इस बेसिस पे कि कौन कितना केपेबल है. बट आफ्टर द
बालाजी विश्वनाथ, द दिस पावर ऑफ द पेशवा, ठीक है, जो पेशवा की सीट थी, इट बिकम एक्चुअली हेरिडेटरी, क्योंकि उनके बाद जो बाजीराव वन थे उनके बेटे वो बने, फिर उसके बाद बाजीराव वन के बेटे बने बालाजी, ओके, बाजीराव। तो ऐसे करके ये पूरा एक जो पोजीशन था पेशवा का, ये हेरिडिटरी हो गया, ओके। So, during the time of Maratha Confederacy, each prominent family under a chief was assigned an area in which they can rule, but in the name of the Maratha king Sahu. तो बालाजी राव वन ने क्या स्टार्ट किया था कि बिकॉज मराठा कन्फेडरेसी वॉज अ ग्रुप ऑफ सेवरल फैमिलीज, और यू कैन से अलग अलग रीजन्स में कुछ लोग थे, उन्होंने मिल के मराठा कन्फेडरेसी बनाया था। तो वो एक्सपैंड कर रहा था अलग अलग एरियाज में, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ईजी बनाने के लिए बाजीराव ने क्या किया, अलग अलग जो फैमिलीज थी, जो पावरफुल प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, उनको अलग अलग एरिया दे दिए और उनको बोला यू कैन रूल एंड यू कैन एक्चुअली आप अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, यू विल रूल, बट यू विल रूल इन द नेम ऑफ द मराठा किंग साहू। सो देयर वाज अ लाइक रूलर, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, लाइक द नेम ऑफ द रूलर, ओके, कि साहू वॉज द किंग। आप सब अपने अपने एरियाज में राज करोगे, लेकिन यू विल एक्चुअली रूल अंडर द नेम ऑफ द किंग साहू, ठीक है, ही विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप। सो हियर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फैमिलीज. So first were the Gaikwads of Baroda, second the Bhosle of Nagpur, the Holkars of Indore, the Scindias of Gwalior, and the Peshwa of Pune. So basically जो पेशवा है, it actually became later, in later years, the family name of Bhatt family, okay, so they were actually in later years known as the Peshwa of Pune. So how did English actually entered into the Maratha Empire was that because अलग अलग families थी, ठीक है, so अलग अलग ideologies होंगी, अलग अलग चीज़ें, कहीं ना कहीं कुछ quarrel होता है चीज़ों में, ठीक है, and from the Balaji Rao one to Madhav Rao one, it was actually considered as the strong empire, but उसके बाद क्या हुआ, there was certain, after the death of Madhav Rao one, certain clashes, okay, between like among the families, जो ये families हैं उनमें भी, and among themselves के कोर्ट में जो अलग अलग रूलर्स थे, जैसे जो पेशवा के ही फैमिली मेंबर्स थे, उन्हीं में थोड़ा बहुत झगड़ा था, विच वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वॉर्स, लाइक एंग्लो मराठा वॉर्स दैट हैपेंड। उनके बैकग्राउंड में हम समझेंगे कि कैसे क्या डिस्प्यूट्स हुए थे फैमिली मेंबर्स के बीच में, जिस वजह से इंग्लिश को एक मौका मिला कि वो उनके बीच में आए और अपना एक पावर इस्टेब्लिश कर ले वहाँ पे, बिकॉज वेर एवर देर इज डिफरेंस, ओके, इंग्लिश का स्टार्टिंग से मोटो यही था कि अगर दो रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं पावर के लिए, सो दे यूज टू कम इन बिटवीन एंड बिकम द एक्चुअल पावर। वो दोनों में से किसी को भी पावर नहीं देते थे, उनको सिर्फ एक पपेट रूलर बना लेते थे एंड दे एक्चुअली यूज टू रूल, ओके, दिस वॉज what English followed the policy of. So now let us discuss about the first Maratha war. So okay, so the background was कि जो माधव राव थे, so if you will consider after the Bajirao one, Balaji Bajirao was the Peshwa, and during Balaji Bajirao the third battle of Panipat was fought. So he had three sons, okay, so the first son was Madhav Rao, sorry, the first son was Vishwas Rao, okay, who died in the third battle of Panipat. He was very young, he was around 18 or 19 years old, so he died during the third battle of Panipat. The second son of Balaji Baji Rao was Narayan Rao, okay, and the third one was Madhav Rao one. So after Vishwas Rao, since Vishwas Rao जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे, बट उनकी डेथ हो गई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसके बाद माधव राव वन को पेशवा बनाया गया। लेकिन माधव राव वन जो थे उनकी भी एक्चुअल सडन डेथ के बाद जो उनके थर्ड बेटे थे, बालाजी बाजीराव के जो तीसरे बेटे थे नारायण राव, उनको पेशवा बनाया गया। बट क्या हुआ, नारायण राव के जो अंकल थे रघुनाथ राव, उन्होंने नारायण राव को मरवा दिया एंड ही एक्चुअली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा, ओके। सो जो गंगाबाई थी, ही वॉज एक्चुअली विडो ऑफ नारायण राव, ठीक है, एंड शी गेव बर्थ टू अ सन
who was named Savai Madhav Rao. Savai means like one and a half. Okay, so Madhav Rao, and he was the next legal पेशवा. तो क्या था बेसिकली, तो जो ये सवाई माधव राव थे, इनका हक बनता था पेशवा की सीट पर, बिकॉज ही वॉज born as the son of Narayan Rao. But since Raghunath Rao actually captured the whole, this position of Peshwa by killing his nephew Narayan Rao, so he was not ready to give upon his position. So later son of Narayan Rao was recognized as Peshwa by 12 Maratha chiefs, Barabhai, led by Nana Fadnavis. So ये जो नाना फडनवीस थे, he was actually a minister in the court, okay, and he was a very intellectual minister, ठीक है, वो हमेशा मराठा एम्पायर के हित में सोचते थे. So he actually didn't liked रघुनाथ राव. तो उन्होंने क्या किया था, he actually made this बाराबाई, ठीक है. So इसमें क्या होता था, बाराबाई में 12 मराठा chiefs होते थे, who was led by Nana Fadnavis. So with the help of these 12 Maratha chiefs, he actually declared the minor son, जो ये बेटे जो born हुए थे विडो ऑफ नारायण राव को, जो गंगाबाई थी उनके जो बेटे थे, उनको एक्चुअली डिक्लेयर किया एज अ पेशवा. बट रघुनाथ राव वॉज नॉट रेडी टू गिव अपॉन हिज पोजिशन, ओके, बिकॉज ही हैड दिस लाइक ग्रीड कि नहीं नहीं, आई विल बी द पेशवा. सो रघुनाथ राव एक्चुअली सॉट हेल्प फ्रॉम इंग्लिश. जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो नारायण राव के बेटे हैं उनको पेशवा नहीं बनने दूंगा, सो एवरीबडी स्टार्टेड एक्चुअली फोर्सिंग हिम कि नहीं आप ये सीट छोड़ दो. सो व्हाट ही डिड वाज कि वो इंग्लिश के पास गए, बॉम्बे में, जो बॉम्बे में इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनके पास गए, एंड ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ सूरत विद देम. सो अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत ही एक्चुअली सिसीडेड. उन्होंने सालसेट और बसाइन का जो एरिया था वो इंग्लिश को दे दिया, ठीक है, विद सम रेवेन्यू ऑफ द बरूच डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, ओके. बरूच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट का जो कुछ रेवेन्यू था वो भी इंग्लिश के नाम कर दिया. जब ये खबर पहुंची ब्रिटिश काउंसिल ऑफ कैलकाटा के पास, ठीक है, सो दे डिडंट अप्रूव इट. दे एक्चुअली कंडेम दिस ट्रीटी एंड देन दे सेंड देयर कर्नल टू this Bombay to sign another treaty which was named as Treaty of Purandar. Okay, सो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर बेसिकली ये बोला गया था कि रघुनाथ राव जो हैं ही विल एक्चुअली रिनाउंस हिज पोजीशन, कि वो ये पोजीशन छोड़ देंगे, पेशवा की पोजीशन छोड़ देंगे, एंड ही विल गेट अ पेंशन फ्रॉम द इंग्लिश. But he actually denied. The Bombay government actually refused this, कि नहीं, we do not actually agree with this treaty, and they gave refuge to Raghunath Rao. Okay. So since this treaty was signed by Nana Fadnavis on behalf of Peshwa and the English government of Calcutta, basically the British Calcutta Council, तो इस ट्रीटी के अंडर ये डिसाइड हुआ था, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि जो रघुनाथ राव है उनको एक पेंशन दी जाएगी, एंड ही विल एक्चुअली डिसोन ऑल हिज क्लेम्स ओवर द सीट ऑफ पेशवा, ठीक है. और इसके बदले में देयर वर सर्टेन कंडीशंस व्हिच वर इम्पोज्ड ऑन मराठा एम्पायर, ओके. सो वॉट हैपन इन 1777 के नाना फडनवीस जो है उन्होंने ये जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसको वॉयलेट किया बाय ग्रांटिंग अ फ्रेंच पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, ओके. सो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच थे उनको एक पोर्ट जो था वेस्ट कोस्ट पे वो दे दिया. सो दिस एक्चुअली दिस वाज कंसीडर्ड एज अ वॉयलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर. सो उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गया, द फर्स्ट एंग्लो मराठा war. So what was the course of the war? The English actually met Marathas on the outskirts of Pune. Okay, so Maratha army was headed by Mahaji Scindia, and he trapped English into the ghats of Talegaon. So this battle, the whole battle was happening on the outskirts of the Pune, named as Talegaon, near the Talegaon. Okay, so if you know, तो पुणे में there are certain mountains. So the Mahaji Scindia, ठीक है, was leading the Maratha army during this war. So what he did was he actually trapped English into the ghats, and they also applied scorched earth policy. So what is this scorched earth policy? They started burning the farmlands and they started poisoning the water available, okay. So this actually forced the English to withdraw from Talegaon, and they were forced to basically move to the village of Wadgaon, where the Marathas cut off their food.
तो मराठास ने क्या किया, जो ये गांव था वाड गांव, उसको चारों तरफ से घेर लिया था एंड दे एक्चुअली cut off their food water supplies by surrounding the village. And hence, because जब खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, how will you actually force your troops to fight? Okay, so after this, the English surrendered in 1779 and Treaty of Vadgaon was signed, under which the Bombay government had to return all territories acquired by them since 1775. तो जो बॉम्बे गवर्नमेंट को, जो बॉम्बे इंग्लिश गवर्नमेंट थी, उसको जितनी भी टेरिटरीज दी गई थी बाय रघुनाथ राव, लाइक साल्सन एंड बसाइन, ठीक है, साल्सेट एंड बसाइन, और भी जो ट्रीटीज उन्होंने एक्वायर की थी 1775, वो उन सबको वापस देनी पड़ी. But Warren Hastings rejected this treaty and sent a large force in 1779. But when all of this matter came in front of Warren Hastings, उन्होंने सब रिजेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा फोर्स जो है वो वहाँ पे भेजा in Maratha Empire in 1779 to capture Basain and Gwalior. Okay, so finally a new treaty was signed known as Treaty of Salbai. So what was the Treaty of Salbai? So this Treaty of Salbai was ratified by Hastings and Fadnavis, ठीक है, Nana Fadnavis. So treaty guaranteed peace between the two sides for 20 years. तो इस treaty के बाद, Treaty of Salbai के बाद, there were peace among the English and the Maratha Empire for the next 20 years. So what were the main features of this treaty was, जो सालसेट का एरिया था, इट वॉज गिवन टू इंग्लिश. ओके, एंड द टेरिटरीज एक्वायर्ड आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज गिवन टू मराठास. English should not support रघुनाथ राव anymore and the पेशवा should grant him pension. तो इस ट्रीटी के अंडर ये डिसाइड हुआ था कि रघुनाथ राव को इंग्लिश रिफ्यूज नहीं देंगे एंड दे विल नॉट फर्दर सपोर्ट रघुनाथ राव एंड द पेशवा विल ग्रांट रघुनाथ राव अ पेंशन. ओके, also it was considered that the English should enjoy the privileges as before and Peshwa should not support any other European. तो इस ट्रीटी के अंदर ये भी डिसाइड हुआ था, जो इंग्लिश हैं वो जितने भी प्रिविलेजेस थे उनके पास पहले, ठीक है, वो सब इंजॉय करेंगे, और जो पेशवा हैं ही विल नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन पावर, जो और कोई भी जो यूरोपियन पावर इंडिया में अवेलेबल थी, लाइक फ्रेंच और डच और एनीवन एल्स, उनको जो पेशवा है वो सपोर्ट नहीं करेंगे. सो दिस इज लाइक द समरी ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई. एंड इसके कंडीशंस के अंडर नेक्स्ट 20 ईयर्स में दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं हुआ था. बट आफ्टर 20 ईयर्स Second Anglo-Maratha War was fought. So let us see the background of the war. It started on the same grounds as of the first war. तो जिस grounds पे first war start हुआ था उसी पे ही second war start हुआ. तो क्या हुआ, जो माधव राव टू थे, ठीक है, जो वो सन थे नारायण राव के, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था. तो उसके बाद बाजीराव टू जो थे उनको पेशवा बना दिया गया. सो बाजीराव टू वॉज द सन ऑफ रघुनाथ राव, वही रघुनाथ राव जो भाग के और ब्रिटिशर्स के पास गए थे हेल्प लेने के लिए, बिकॉज ही डिडंट वांटेड कि वो अपनी सीट छोड़े. ओके, सो द बाजीराव टू वॉज वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर. ओके, so he had a little dispute with Nana Fadnavis, because Nana Fadnavis always wanted like good for this Maratha empire, and since Bajirao was not a very competent ruler, so they had some clashes over certain issues, and Nana Fadnavis was chief minister. So basically क्या हुआ कि ये जो दोनों के बीच में clashes थे, it provided an opportunity to the English to interfere in affairs and the matters of the Maratha. Okay, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फडनविस, जब फडनविस की डेथ हो गई उसके बाद तो इंग्लिश गवर्नमेंट को और ज़्यादा एडवांटेज मिल गया था कि वो ये जो बाजीराव थे, बाजीराव टू, इनको थोड़ा पहला फुसला के या फिर इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करके वो वहाँ का पावर गेन कर लें. Okay, so on all of these terms, this actually started. So what happened? Like the immediate cause was, जो पेशवा थे बाजीराव टू, he actually brutally murdered the brother of Jaswant Rao Holkar. So Jaswant Rao became very furious and he actually attacked. Okay, so क्या हुआ, जब उन्होंने अटैक किया जसवंत राव ने, तो पेशवा actually asked Scindia to come and help him, but Jaswant Rao was actually able to
डिसीसिवली बेसिकली उन्होंने क्या किया, दोनों फोर्सेस को हरा दिया था, सिंधिया और पेशवा की कंबाइंड फोर्सेस को जसवंत राव ने हरा दिया था, एंड देन ही प्लेस्ड अ पपेट रूलर ऑन द सीट ऑफ पेशवा. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये जो सिनारियो चल रहा था पुणे में, बिकॉज ऑफ दिस बाजीराव टू एक्चुअली टेरिफाइड एंड fled to बसाइन in 1802 and signed a treaty with English. ठीक है, जब वो बसाइन चले गए, जब भाग गए, उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने इंग्लिश के साथ एक ट्रीटी साइन की. दिस केम टू बी नोन एज द ट्रीटी ऑफ बसाइन. So these are the main points of the Treaty of Basain. So he actually, the Bajirao II actually received around 6,000 troops with the usual proportion of field and European artillery men from English. तो उन्होंने English से बोला that I will actually surrender the city of Surat to you, and you instead have to give me, like in lieu of this, you have to give me around 6,000 trained ट्रूप्स विद द आर्टिलरी मेन्स. ओके, कि आप मुझे पूरा गोला बारूद सब कुछ दोगे विद 6,000 ट्रूप्स, इंग्लिश ट्रूप्स. ओके, इसके बदले में उन्होंने इंग्लिश को दे दिया था सिटी ऑफ सूरत. And he also had to give up all claims of Chauth on Nizam's dominion. Since Nizam had a like very good relation with English, so English ने बोला that you have to give up all claims of Chauth. जो आप चौथ लेते हो निज़ाम से, वो आप नहीं लोगे. Also to accept company's arbitration in all differences between him and the Nizam of Gaikwad. कि अगर जो बाजीराव टू हैं उनके बीच में और निज़ाम ऑफ गायकवाड के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें कंपनी ही इंटरफेयर करेगी, कोई और आके इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है, कंपनी विल एक्चुअली वर्क एज अ आर्बिट्रेटर बिटवीन द टू ऑफ देम. Also, under this treaty, it was mentioned that not to keep in his employment European of any nation at war. कि बाजीराव जो है वो कोई और यूरोपियन की हेल्प नहीं लेंगे during war. Okay, and to subject his relations with other states to control of English. Okay. So after Peshwa accepted subsidiary alliance, Scindia and Bhosle attempted to save Maratha Empire but failed. So after this treaty was signed, basically English ने बाजीराव टू को kind of puppet ruler दोबारा से पेशवा बना दिया था empire का. So at that time, Peshwa was actually forced to accept the subsidiary alliance. But Scindia and Bhosle attempted to save Maratha Empire. उन्होंने बहुत कोशिश की to gather some forces and to like have a war with the English. But what actually happened was that इंग्लिश ने उन्हें भी हरा दिया था, सिंधिया और भोसले को, एंड दे वर एक्चुअली फोर्स टू साइन सेपरेट सब्सिडरी अलायंस. सिंधिया और भोसले के साथ अलग अलग एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके अंडर उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस को बाद में एक्सेप्ट किया. सो दिस वॉज द वॉर, जिससे ये मतलब ये पूरा था वॉर का कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई, क्या हुआ, व्हाट वाज द बैकग्राउंड. सो नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ बसाइन. सो कंपनी वॉज वेल प्लेस्ड टू एक्सपैंड इट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. सो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बसाइन उसको ऐसे ऐसे एरियाज मिल गए थे from where it was easy to expand into every area. Okay, कि वो नॉर्थ भी एक्सपैंड कर सकते थे, सिंस उन्होंने नॉर्थ को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था, उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया था, इधर मैसूर को. एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बसाइन दे एक्चुअली कैप्चर द दिस मराठा एम्पायर एंड वेरी स्ट्रैटेजिक लाइक एरिया नोन एज बसाइन. तो उसके बाद कंपनी के लिए बहुत ईजी हो गया कि वो वहाँ पे रह के अपने सारे जितने भी टेरिटरीज हैं उनको रेगुलेट कर सके और जो अपना एम्पायर है उसको वहाँ से और ज़्यादा एक्सपैंड कर सके. सो आफ्टर दैट द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हैपेंड. तो इसका बैकग्राउंड ये था, आफ्टर द मराठास बिकेम वीक, ओके, द पिंडारीज कुड नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस दे स्टार्टेड प्लंडरिंग. तो क्या हुआ था, ये जो पिंडारीज थे दे वर अ काइंड ऑफ लाइक जैसे एक ट्राइब होती है. सो दे वर एक्चुअली रेगुलरली एम्प्लॉयड अंडर द मराठास. जो मराठास हैं
वही उनको काम देते थे कि आप ये करोगे या ये करोगे। तो क्या हुआ, जब मराठा एम्पायर फॉल होना शुरू हो गया और इंग्लिश ने अपना पावर असर्ट करना शुरू कर दिया था, तो पिंडारीज के पास कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पेट पालने के लिए दे स्टार्टेड प्लंडरिंग, कि उन्होंने चोरी चकारी शुरू कर दी थी, उन्होंने जितने इंग्लिश कंपनीज थे उनको लूटना शुरू कर दिया था। तो जब पिंडारीज का ये एक्शन था, इंग्लिश कंपनी चार्ज इट अगेंस्ट मराठास। तो इंग्लिश को लगा कि ये पिंडारीज जो है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद मराठास, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मराठास का ही इसमें हाथ होगा कि ये लोग ये कर रहे हैं। सो बेसिकली पिंडारीज के एक्शन के लिए मराठास को चार्ज किया गया था। Also, Treaty of Basain was seen as a surrender of independence by some of the Maratha leaders. So they were like very proud leaders in the Maratha Empire. So they actually saw this surrender of इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ बसाइन को उन्होंने सोचा कि अब लाइक जब पेशवा ने ही सरेंडर कर दिया है, सो इट्स लाइक वेरी डिमीनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, सो बाजी राव टू मेड अ लास्ट बिड इन 1871 बाय रैलिंग टुगेदर मराठा चीफ्स इन कोर्स ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो क्या हुआ, इस चीज से बाजीराव टू ने एक लास्ट अटेम्प्ट करने का सोचा इन 1871 बाय रैलिंग टुगेदर मराठा चीफ्स इन कोर्स ऑफ थर्ड Maratha war. So what was the course of the war? पेशवा attacked British residency in Pune. तो इसमें क्या हुआ था कि इन लोगों ने, जो अलग अलग लीडर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, इन्होंने अलग अलग जगह से इंग्लिश रेजिडेंसीज को अटैक करना शुरू किया। जैसे पेशवा ने अटैक किया जो पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी थी उसको। ओके, जो अप्पा साहिब थे उन्होंने नागपुर में जो रेजिडेंसी थी उस पर अटैक किया, और जो होलकर्स थे दे एक्चुअली मेड द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। बट बाय देन जो मराठा जो बेसिकली मराठा लीडर्स थे, उनको जो एक वॉर के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है ना, वो सब खो चुके थे, लाइक मनी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो लाइक एक प्रॉपर माहौल चाहिए होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है कि आप अपनी आर्मी को कैसे आगे बढ़ाओगे। ठीक है, सो दे वर नॉट वेरी लाइक बहुत अच्छे रूलर्स नहीं थे बाजीराव वन की तरह कि जो आर्मी को डिसाइड कर सके कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, लीड करने वाले रूलर्स नहीं थे बेसिकली। तो इन सब रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द मनी पावर दैट दे लॉस्ट, so hence English actually strike back vigorously, okay, succeeded in not allowing the Peshwa to exert his authority. तो English ने इतना तेज उनके ऊपर like war किया था, मतलब हमला किया था कि Peshwa was not able to exert his power and authority again. So what was the result of this war? So Peshwa was defeated at Khirki, Bhosle defeated at सिताबुल्दी एंड होलकर डिफीटेड एट महिदपुर। तो अलग अलग लोगों को, क्योंकि बिकॉज कंपनी ऑलरेडी गॉट द पावर नो, कि उसने अलग अलग जगह पे अपना तो पूरा जमा लिया था, अपना जो मिलिट्री पावर है। सो इट वाज वेरी इजी फॉर इंग्लिश के वो अलग अलग एरियाज में अपनी आर्मी को भेज के और उनको जो मराठास हैं उनको हरा सके। सो द इम्पोर्टेंट ट्रीटीज दैट वाज साइंड आफ्टर दिस वॉर वाज ट्रीटी ऑफ पूना, Treaty of Gwalior and the Treaty of Madras. And finally after this war the पेशवाशिप, जो पेशवा की पोजीशन थो उसको अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद पेशवा एग्जिस्ट नहीं करते थे। बाजीराव टू को भी एक एरिया दे दिया गया था, और जो अलग अलग रूलर्स थे उनको बस छोटे छोटे एरियाज दे दिए गए थे कि आप इनमें रूल कर सकते हो, एंड दैट टू अंडर द पावर ऑफ इंग्लिश। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि कैसे इंग्लिश ने पंजाब के ऊपर अपना हक जमाया, एंड हाउ डिड ही एक्चुअली वॉन ओवर द एरिया ऑफ पंजाब, सिंस पंजाब वॉज इन द नॉर्थ एरिया। तो उसके ऊपर पावर एक्सर्ट करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज एट दैट टाइम रंजीत सिंह वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर एंड ही वॉज एबल टू actually conquer all of the Punjab. So it became actually a little difficult for the English to conquer the area of Punjab, which we are going to discuss in our next lecture. So if you need to have the PDF of these lectures, so please join our Telegram group. उसका जो link है वो मैंने description में mention कर दिया है। Okay, and if you didn't get the link, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने Telegram पे जाएंगे and simple concepts UPSC सर्च करेंगे तो भी आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, और इसमें हम अपने सारे वीडियोस के PDF के साथ साथ क्विज और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। So you can join that group. So I'll see you all in next video. Till then, please take care and bye bye.